دوستو آپ سب کی مہربانی، آپ تشریف لائے۔ میں یہاں آیا تھا شہید بے نظیر آباد ڈویژن کی میٹنگ کرنے، اور میٹنگ کرنے کے 27 دسمبر کو ہم اپنے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بھرپور تیاریوں کے ساتھ گڑی خدا بخش پہنچے، اور سب کو بتائیں بے نظیر صاحبہ کے اس جد و جہد کے بارے میں، بھٹو شہید کے جد و جہد کے بارے میں، اس گڑی خدا بخش میں جو بھی دفن ہے ان سب کی محنتوں اور جد و جہدوں کو اچھی طرح سے سلام پیش کریں۔ ہم ہمیشہ کرتے رہے ہیں، اور ہماری نیت یہی ہوتی ہے کہ پہلے سے بڑھ کر کریں، پہلے سے بڑھ کر کریں، اور انشاءاللہ جیسے ہی بلاول بھٹو صاحب نے اپنی سیاسی جدوجہد میں ہراول دستے کا کام کیا ہے، ہراول دستے کے طور پر اس نے محنت کی ہے، گرمی پیدا کی ہے، عوام کو وہ دن یاد کروائے ہیں جہاں ہم جدوجہد اور مزاحمت بھی کرتے تھے، اس کو دیکھا دیکھی ملک کی سرگرمیاں اور سیاسی سرگرمیوں میں پر بھی وہ اثر ہوا ہے کہ جس سے آج کی حکومت کے حواس بھی کچھ باختہ ہو گئے ہیں۔ اچانک سے یاد آئے گی بات کہ وہ تو کہتا تھا کیونکہ یو ٹرن تو وہ مشہور ہے، یو ٹرننگ پر تو وہ مشہور ہے، پہلے کہتا تھا شیخ رشید کے لیے کہ اس کو تو میں چپراسی بھی نہیں بناؤں گا، لیکن وہ ریلوے سے نکال کے اب اس کو وزیر داخلہ بنایا، جلسے تھے 2 دن پہلے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ شیخ رشید تو کیا، عمران خان خود بھی اگر وزیر داخلہ بن جائے تو بھی جلسے سے روک نہیں سکتا، اور آج دیکھ رہے ہیں کہ آج 13 تاریخ کو اسی مینار پاکستان پر جلسہ ہو رہا ہے۔ یہ جلسے ہماری بنیادی حق ہے، اور ابھی تک کسی نے ہماری یہ بنیادی حقوق سلب نہیں کیے، اس میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہماری یہ بنیادی حقوق سلب کر لی، چاہتا یہی ہے۔ اور میں تو اس پہ یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ یار شیخ رشید کو داخلہ بنانے کا کیا سوچ کے اس نے کیا؟ کیا وہ مشرف کو بچا سکا کہ عمران کو بچائے گا؟ کیا جنرل مشرف کو وہ بچا سکا شیخ رشید کی اب عمران خان کو بچائے گا؟ عوام کے غیظ و غضب کے سامنے شہنشاہ بھی نہیں رک پاتے۔ ایران کا معاملہ ہمارے سامنے ہے، دنیا کے دوسرے ممالک میں ایسا ہوا ہے، اور اس طرح بھی پاکستان میں بھی جس طرح سے لوگ جوک در جوک ہمارے ڈکلیئرڈ جلسوں میں آنا شروع ہوئے ہیں، تو یہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ حکومت کتنی کھوکھلی ہو چکی ہے، اور کھوکھلے پنے سے نہ پارلیمنٹ چلتی ہے، نہ حکومت چلتی ہے، نہ ملک چلتا ہے۔ یہ ہینڈل نہیں کر سکا نہ حکومت کو کہ جو عوام کی بھلائی میں کوئی سوچے، نہ پارلیمنٹ کو جس کو اس نے گالیاں دی تھی، لعنتیں بھیجی تھی اسی پارلیمنٹ پہ، نہ ملک میں رہنے والوں کی کوئی عزت کرا سکا۔
हैं अखबारों में ये बातें कि अवाम अपने बच्चे बेचने पर आ गए हैं। जिस मुल्क में ये हालात हों, जिसमें खुद हुकूमत खुद माने कि हम कलेक्शन भी नहीं कर पाते, हम ग्रोथ में भी नेगेटिव जा रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन लगी नहीं है, किसान मजदूर अभी भी तासुब किसानों के साथ। हम कह रहे हैं कि गंदम की रकम 2,000 रुपए करो कि लोगों की महंगाई को मुकाबला करने के लिए कुछ जेब में टक्के तो आए। ये उसी बात पे 1,650 रुपए, उस पे भी इसने कंजूसी दिखाई। इतनी गैर मुल्की इमदाद का असर इधर नहीं कर सकता कि आवाम को कुछ मिले, आवाम के लिए कुछ अरेंजमेंट करे कि वो बेहतर तौर पर जिंदगी गुजार सकें। ये सारी सूरत हाल है जिसमें अवाम चिढ़ चुके हैं और इसके पास न सोच है न अख्तियार है कि लोग कोई चेंज महसूस करें। इन्होंने हुलिया बिगाड़ के रख दिया बैनुल अक़वामी तौर पर अपने मुल्क का, खुद ही को अकेला करता जा रहा है। हम पाकिस्तान के दिलदादा हैं, हमने पाकिस्तान को बचाने के लिए बहुत बड़ी जदोजहद की है। हमने इस मुल्क में अवाम के हक दिलाने के लिए न कभी फांसियों से न कभी गोलियों से डरे हैं, न कभी कोड़ों और जेलों से। ये हमारा आज़म है और शुक्र है कि बिलावल भुट्टो साहब ने कोशिश की और एक 11 जमाती इत्तेहाद बन गया है। 11 जमाती इत्तेहाद जो सूबाई खुद मुख्तारी के दिलदादाएं हिमायती हैं, सूबाई हुकूक का वो ख्याल रखेंगे। ये इमरान खान की तरह नहीं है कि सिंध के आइलैंड्स पर कब्जा करने के कानून बनाए, 18वीं तरमीम के ऊपर तनकीद करे, NFC न दे। ये सब वो बातें जो सूबों को कुछ फायदा दे सकती हैं, उसके एजेंडे तक नहीं रहे, उस एजेंडे में ही नहीं है। मुल्क सूबों से मजबूत हुआ है, मुल्क सूबों का नाम है, मुल्क अवाम का नाम है। ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से हम इस जदोजहद में हैं। और मुझे इस 27 दिसंबर को हमारे PDM के सरबराहान भी इस जलसे में आएंगे और उनके सामने गड़ी खुदा बख्श होगा और उस गड़ी खुदा बख्श की अजमतों पर बात होगी। पीपुल्स पार्टी और दूसरी जमातें इस कौम को मुत्तहद करने में उन्होंने अहम किरदार अदा किया है। हमने कौम को तोड़ा नहीं है, हमने अकेली उड़ान नहीं की है। हम आवाम को इज्जत देते हैं, आवाम के लिए जान देते हैं। सूरत हाल मुल्क की आप सब पता है। मैं सिर्फ ये बताने के लिए कि हाँ, हम जलसे में जाएंगे और भरपूर अंदाज में जाएंगे। हम वेलकम करेंगे दूसरे लीडर साहबान का भी, और एक और कदम होगा। ये इसकी डूबती हुई कश्ती शेख रशीद में अपना किनारा अगर ढूंढ रही है तो कश्ती डूब जाएगी, किनारा नहीं मिलेगा। बहुत शुक्रिया। आपका सवाल में हल है। जैसे कि हमने पहले देखा कि सिंध गवर्नमेंट वाज इन फेवर ऑफ सीवियर लॉकडाउन, तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो सिंध गवर्नमेंट है उसने लॉकडाउन रखा काफ़ी सीवियर किस्म का, और अभी जो लॉकडाउन की पॉलिसी है उसमें काफ़ी चेंज नज़र आ रहा है। डिस्पाइट के द सिंध हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर अजरा फजल इज कंटिन्यूसली वार्निंग एंड गिविंग स्टेटमेंट ऑफ सीवियर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट इस हवाले से
इतनी नरम क्यों नजर आती है, और अब आप ये जल्दी की नरम बात अपनी भी कर जगह रहे पे। हर फोन पर मैसेज क्या चल रहा है? खुद की हिफाजत करो, मास्क पहनो, सोशल डिस्टेंसिंग करो, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि बाजार बंद करो। हुकूमत ने कहा कि हाँ कारोबार है खुला हुआ, बाजार की भीड़ के बारे में हुकूमत क्यों कुछ नहीं कहती? हुकूमत ने कंप्लीट लॉकडाउन की अनाउंसमेंट नहीं की है। तुम जलसों में आने पर तनकीद कर रहे हो, बाजार में जब लोग जाते हैं तो उनको क्या सारों के मास्क पहने हुए, क्या वहां भीड़ नहीं होती? ये सिर्फ ये है कि जी जलसों पर अटैक करनी है, इसलिए कोई ना कोई कमजोर सा दलील लेके कहते हैं कि जी जलसे नहीं करने देंगे, जलसे नहीं करने देंगे। एबटाबाद में जलसा नहीं हुआ, 4 दिन पहले अखबार में क्यों खबर आई? सबसे ज्यादा अमवात एबटाबाद में हुई है। कराची में जलसा हुआ, लेकिन कराची चौथे नंबर पे क्यों है या 5वें नंबर पे क्यों है? जलसों के लिए करो ना। अमेरिका में जलसे हुए या नहीं हुए इलेक्शन में? और जगहों पे जुलूस निकले या नहीं निकले? फिलिपाइन में पता नहीं कहां कहां निकले थे। सब जगह नॉर्मल जिंदगी की प्रेफरेंस है ना इस हुकूमत की कि बिजनेस चले। क्या वहां वर्कर काम नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं ना। बाजार में जा रहे हैं, सब्जी मंडी में माल पीढ़ियां, ये वो सब कुछ ठीक ठाक है। सिर्फ जलसे करने पर एतराज है। खुद क्यों किया जलसे? हाफिजाबाद में क्यों किया, गिलगित में क्यों किया, 4 वजीर उसके क्यों गए? ढकोसला, बाकी कुछ नहीं। हम अपनी हम लॉकडाउन की तरफ जो पॉलिसी आई हुई है, हिफाजत करो अपनी, हाँ सोशल डिस्टेंसिंग करो, लेकिन अगर ये बात है तो फिर हिफाजत हो ही जाती है। फिर उसमें सोशल डिस्टेंसिंग अगर ना भी हो तो भी खैर है। थैंक यू। रहमान साहब ने कहा है कि इस्तीफे का नतीजा